تو پہلی خبر کی اگر بات کریں تو ایم ای اے کے پریس کانفرنس سے سنجیو اروڑا نے جائزہ لیا اور وہاں پر جو کام ہو رہے تھے ان کا جائزہ لیا ہے۔ ایم ای اے کانفرنس کی گئی تھی۔ دوسری خبر آپ کو بتائیں، جے کے سی اے کی پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں کرکٹ پر چند لوگوں کا قبضہ ہے، اس کو لے کر بات چیت کی گئی اور اس پر جو الزامات لگے ہیں کہ کچھ لوگوں کا قبضہ ہے، اس کو لے کر بات چیت کی گئی اور اس الزام کو دور کرنے کی بات پر ایک دوسرے سے رد عمل ظاہر کیا گیا۔ تیسری خبر آپ کو بتائیں، ریاست میں ویژن زیرو، کم ہوں گے روڈ ایکسیڈنٹ۔ ویژن زیرو کی شروعات کی جانے کی امید اب دکھائی دینے لگی ہے اور یہ اس سے فائدہ ہوگا کہ جو روڈ ایکسیڈنٹ ہیں ان میں کمی آئے گی۔ چوتھی خبر آپ کو بتائیں، 150 سال پرانا مندر نظر انداز ہے اور پانچویں خبر آپ کو بتائیں کہ موسیقی کا انعقاد کیا گیا اور پرسکون موسیقی پر وہاں پر دیکھنے کو ایک پروگرام ملا تھا۔ تو یہ ساری خبریں آپ کو تفصیل سے بتائی جائیں گی۔ تو جموں کشمیر آپ کو لیے چلتے ہیں سیدھا سید تجمل، سبھی پانچوں خبروں کو تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ بہت بہت شکریہ شفان۔ ناظرین، 5 خبروں سے قبل ابھی تک کی سب سے اہم اور بریکنگ خبر۔ جی ہاں، شمالی کشمیر کے براٹ سوپور سے ابھی خبر بریک ہو رہی ہے کہ علاقے میں 22 راشٹریہ ریفرنس ایس او جی اور جموں کشمیر پولیس نے آج صبح شمالی کشمیر کے براٹ سوپور کو کریک ڈاؤن اور سرچ آپریشن پہ کیا۔ اس کے بعد سرچ آپریشن کے بعد 3 سے 4 ملیٹنٹوں کے چھپے ہونے کی اطلاع ملنے کے بعد علاقہ براٹ ابھی سرچ آپریشن اور کریک ڈاؤن کے سائے میں ہے۔ اسی بیچ علاقے میں انٹرنیٹ ڈیٹا سروس کو بند کر دیا گیا۔ اے ڈی ڈی سی سوپور نے اب سے کچھ دیر پہلے زی سلامس کو بتایا کہ علاقے میں آج ڈگری کالج میں سرگرمیاں معطل رہیں گی۔ جی ہاں، تعلیمی سرگرمیاں ڈگری کالج سوپور میں معطل رہیں گی۔ براٹ سوپور، جہاں سے گزشتہ 5-6 مہینے سے لگاتار یک کے بعد دیگر ملیٹنٹ اور فوج کے بیچ میں خونین مارکایوں کا سلسلہ گزشتہ 6 مہینے سے جاری رہا، آج صبح علاقے میں سیکیورٹی فورسز کو اطلاع ملی کہ ایک ملیٹنٹ جو ہے براٹ سوپور میں ایک مکان میں چھپے بیٹھے ہیں، جہاں پر سیکیورٹی فورسز نے وہاں پہ جا کر سرچ آپریشن شروع کیا۔ جو ہی سرچ آپریشن کی ٹیم براٹ سوپور اس جگہ تک پہنچی تو چھپے بیٹھے ملیٹنٹوں نے وہاں سے فائرنگ کی، جو کچھ دیر تک چلی۔ فائرنگ رک چکی ہے، لیکن سینئر پولیس افسر نے اس بات کی تصدیق کی کہ علاقے براٹ میں کئی ملیٹنٹ بیٹھے تھے، جس کے بعد سرچ آپریشن جو ہے ابھی جاری ہے۔ مزید خبروں کا انتظار ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ابھی تک کی سب سے اہم خبر، لیکن جموں کشمیر سے 5 اہم خبریں ابھی تک کی کیا ہیں، ان کی تفصیل میں جانے سے قبل آپ کو دکھاتے ہیں کہ کون سی 5 ابھی تک کی اہم خبریں سری نگر میں ہے۔ ناظرین، خارجہ وزارت کے ایک نمائندے کی طرف سے سری نگر میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ پریس کانفرنس کے دوران رواں سال میں بتایا گیا کہ کل ملا کر 1,27,000 کے قریب جو اپلیکیشنز پاسپورٹ کے لیے دی گئی تھی، ان میں 1 لاکھ کو کلیئر کیا گیا۔ دوسری اہم خبر سری نگر سے، جموں کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن ان دنوں انتشار سے دوچار ہے۔ جموں کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن سی او عاشق بخاری کے منتخب ہونے کے بعد پروفیشنل کرکٹروں کو ناراضگی کے بعد پرویز رسول میدان سے نکل کر پہنچے پریس کلب، پریس کانفرنس سے خطاب کیا، کہا کرکٹ بچانا ہے تو گزشتہ دہائیوں کا ریکارڈ دیکھے گا، جے کے سی اے نے کرکٹ کی بہبودی کے لیے کام نہیں کیا۔ پروفیشنل کرکٹ نے کچھ دیر پہلے الزام لگایا تھا پریس کانفرنس میں، انہوں نے کہا تھا کہ سی او کو 2 دنوں کے تحت لودھا کمیشن کی سفارشات کو اور ریکمنڈیشنز کو پورا کرنا ہوگا۔ نتائج ہمارے سامنے، تفصیل تھوڑی دیر بعد جانیں گے۔ ناظرین، کشمیر، جموں، راجوری، پونچھ، منجاکوٹ لگاتار سڑک حادثات کے بعد کئی قیمتی جانیں تلف ہوئی۔ آج پریس کانفرنس کے بعد اب روڈ شوز اور کنونشن کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ سڑک حادثات کو کیسے کم کیا جائے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر کے تعاون سے خواتین کے کالج سری نگر میں اہم ترین کنونشن ہوا اور معاملات پر بات چیت ہوئی۔ ناظرین، ریاست جموں کشمیر میں مندر بہت بڑے ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ شیوا مندر جو ہے وہ استاد محلہ بڈگام میں موجود ہے، ناگفتہ حالت اور سرکار کی بحثی کا شکار۔ اب دیکھنا ہوگا کہ انتظامیہ اس رپورٹ کے بعد کیا کرتی ہے۔ شمالی کشمیر ضلع بانڈی پورہ میں موسیقی کے مقابلوں کا انعقاد، وادی کے 17 کالجوں نے اس میں کی شرکت۔ شروعات کرتے ہیں ابھی تک کی بڑی خبر کی تفصیل کے ساتھ۔ ناظرین، ریاست جموں کشمیر میں گزشتہ 30 برسوں کے دوران پاسپورٹ حاصل کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ سی آئی ڈی ویریفیکیشن کے ساتھ ساتھ ہر بندے کی
इनफरादी आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन इंतहाई लाजमी थी। जिसके बाद वजारत खारजा के तर्जमान संजीव अरोरा श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस साल इस तरीक़ेकार को मजीद बेहतर बनाया गया। उन्होंने दावा किया कि 1 लाख से जायद एप्लीकेशन, तकरीबन 1,27,000 के करीब एप्लीकेशन जो हमें वसूल हुई, उनमें 1 लाख केस क्लियर किए गए और अब की बार वेरिफिकेशन का जो मार्जिन था वो इंतहाई साफ, शफा और बेहतर रह गया था। पासपोर्ट हासिल करने के लिए जम्मू कश्मीर में मौजूदा 30 बरसों के हालात भी काफ़ी हावी रहे। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा, Glad to share. Many of you would remember that in this area, the first POPSK was opened at Leh. This was in July 2017, and of course, sometime after that, 2 more POPSKs were opened around the same time. I think it was around February 2018. One at Anantnag, and the other at Baramulla. Well, in the year 2018, the total number of passport applications received by our passport office in Srinagar, it was 86,940, and the number of passport issued was more than 84,107. That means that certainly this period has seen, I would say, very swift rendering of passport services. वजारत खारजा के नुमाइंदे की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिर्फ श्रीनगर से 86,000 से जायद पासपोर्ट इस साल इजरा किए गए। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्टूडियो से आप इस वक्त उर्दू दुनिया की नंबर 1 चैनल जी सलाम से बराह रास्त सलाम कश्मीर प्रोग्राम देख रहे हैं। आप फेसबुक और सोशल मीडिया पर भी इसको बराह रास्त देख पाएंगे। जी सलाम पेज लाइक करें, फेसबुक में जाएं, आप बराह रास्त हमारे साथ जुड़ पाएंगे। नाज़रीन, अब एक और मौजू। रियासत जम्मू कश्मीर में क्रिकेट की बहबूदी के लिए जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन गुज़श्ता कई दहाइयों से सरगर्मी के साथ काम कर रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से लेकर इमरान रजा अंसारी तक सदर मुंतखब हुए, लेकिन क्रिकेट प्रोफेशनलों के मुताबिक लोधा कमीशन की सिफारिशात को अमलाने का अभी तक कोई तजुर्बा नहीं किया गया। दरअसल लोधा कमीशन की सिफारिशात को अमलाने का मकसद जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को क्रिकेट फॉर क्रिकेटर्स, जो कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उन्हीं के हवाले किया जाना चाहे। ताहम गुज़श्ता महीने जब हालात ज़्यादा बेहतर नहीं हुए तो उसके बाद सीओ ने कहा कि बहुत जल्द इंतखाबात किया जाएंगे। आशिक बुखारी सीओ बनने के बाद प्रोफेशनल क्रिकेट एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि क्रिकेट के लिए हम सबको इकट्ठा बैठना होगा। ताहम नुमाया क्रिकेटर परवेज रसूल JKCA के दिफा में कल श्रीनगर के प्रेस क्लब मैदान से सीधे पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता दहाइयों से जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने क्रिकेटरों के लिए कुछ नहीं किया। ताहम रियासत जम्मू कश्मीर में मौसम, हालात और बाकी मामलात को लेकर प्रोफेशनल क्रिकेटरों का मानना है कि जो कुछ हमसे हो सका वो कर दिया। परवेज रसूल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात आगे बढ़ाते हुए मजीद कहा, द सोल पर्पस इस इंटरेक्शन का सिर्फ यही है कि वेलफेयर ऑफ क्रिकेट एंड द क्रिकेटर्स अक्रॉस द स्टेट। मतलब अक्रॉस द स्टेट में ये कहूँगा, फ्रॉम लद्दाख टू कुठवा, फ्रॉम पीर पंचाल टू चिनाब वैली, मतलब जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे हैं जम्मू कश्मीर में, JKCA जो मतलब जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में 22 डिस्ट्रिक्ट्स है, तो मैं सब की बात मतलब यहाँ पे जो वेलफेयर क्रिकेट में कह रहा हूँ, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के मैं कह रहा हूँ। नॉट ओनली दोज जिन्होंने आज तक JKCA को हाईजैक करके रखा था, मतलब जितने भी लोग वहाँ पे थे, कुछ मुट्ठी भर लोग जिन्होंने पूरा JKCA को आज तक 70 साल की JKCA की हिस्ट्री में हाईजैक करके रखा। मारूफ क्रिकेट स्टार परवेज रसूल श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे जम्मू कश्मीर में क्रिकेट की फलाह बहबूद के लिए। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर के मंजाकोट के बाद रामबन, बानीहाल, खूनी नाला ये वो इलाके हैं जो लगातार ट्रैफिक हादसात के दौरान कई कीमती जानें तलफ होती रहीं। चाहे मौसम गर्मा हो या सरमा का हो, रियासत जम्मू कश्मीर सड़क हादसात अभी थमने का नाम नहीं लेते हैं।
इसी बीच श्रीनगर के वेमेंस कॉलेज में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर के मुश्तरका इत्तेफाक से एक अहम कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बताया गया कि सड़क हादसा को कम करने के लिए इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर हम सबको अपना रोल कलीदी तरीके से अदा करना होगा। दरअसल सड़कों की इंतहाई नागुफ्तगब हालत, मैग्डमाइजेशन न होना, रोड डाइवर्जन, कई एक मामला को लेकर ट्रैफिक पुलिस और पब्लिक कोऑर्डिनेटर्स को मिलजुल कर वर्कआउट करना होगा। ब्लाइंड कर्व्स अपनी जगह, ओवरलोडिंग अपनी जगह, ड्राइवरों की लाइसेंस अपनी जगह, लेकिन अगर हम अपनी तरफ से इनफरादी तौर पर कोशिश करें तो सड़क हादसा को टाला जा सकता है। मुकर्रीन ने इस मौके पर जोर दिया कि वुमेन्स कॉलेज श्रीनगर के बाद दीगर डिग्री कॉलेजों और पब्लिक प्लेसेस पर इसी तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद जारी रखा जाएगा ताकि सड़क हादसा को मार्जिन किसी तरह से कम किया जा सके। रोड सेफ्टी एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है गवर्नमेंट की भी और सभी स्टेक होल्डर्स की, जिसमें हमारे व्हीकल ओनर्स हैं और जो भी लोग रोड को यूज़ करते हैं। अनफॉर्चुनेटली रोड सेफ्टी जो मेजर्स उनकी एब्सेंस की वजह से या इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ लॉस ऑफ लाइफ हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फ्रंट्स पे हम काम कर रहे हैं, जैसे इंटेलिजेंट ट्रैफिक लाइटिंग सिस्टम का हमने पब्लिक में एक स्टेटमेंट देके डेडलाइन जो फिक्स की उस पर हम खड़े उतरे हैं, वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। सेकंड स्टेज जा रहा है। इसके बाद इसी साल जो कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किया जाने करने के लिए हमने काम शुरू किया, जिसमें रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम और स्पीड वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम आएगा। ये सिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें जो इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उनमें से कुछ स्टेप्स हैं। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अभी 250 बसेस को इंसेंटिवाइज करने के लिए 12.5 करोड़ रुपीज़ दिए गए हैं श्रीनगर सिटी के लिए। इलेक्ट्रिक बसेस और लाई जा रही हैं। तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ज़राए इब्लाग से इस कन्वेंशन के बाद बात कर रहे थे। नाजरीन, अब चलते हैं श्रीनगर के बाद बडगाम की सूरत हाल जानने के लिए। नाज़रीन, सेंट्रल कश्मीर ज़िला बडगाम श्रीनगर के नज़दीक होने के बावजूद भी यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद मौजूद है। मिला जुला संगम ज़िला बडगाम को आज हम आपको उस्ताद मोहल्ला बडगाम लिए चलते हैं, जहाँ पर 150 साल पुराना शिव मंदिर जो है सरकार की नज़रों से ओझल है। दरअसल ज़िला बडगाम के उस्ताद मोहल्ले में अब की बार जो दरख्त कटवाने का सिलसिला शुरू किया गया था, हालांकि हाई कोर्ट की डायरेक्शंस भी थी, ताहम इस मंदिर तक पहुंचने के लिए इन सफ़ेदे के दरख्तों की जो रुकावट है वो आम लोगों के लिए इन्फेक्शन और बाकी मामला खड़े करते हैं। दरअसल इलाके में सेहत व सफाई या सैनिटेशन के नाम पर कोई भी चीज़ या म्यूनसिपल कमेटी या बल्दिया के लोग जो हैं इस तरफ आने की जहमत तक नहीं करते हैं। मकामी लोगों के मुताबिक 150 साला पुराना भाईचारे की अजीम बिल्डिंग रियासत जम्मू कश्मीर के दूर उफ्तादा इलाकों को अपनी तरफ खींचने में ज़्यादा मायल नहीं हो सकी, जिसकी सबसे बड़ी वजह ज़िला तरक्याती कमिश्नर और मुतल्लिका अफसरान की बेहसी है। हमारे साथी शौकत बेग ने मकामी इलाके में इस मंदिर की हालत और आने वाले ज़ायरीन के हवाले से बातचीत की। तो यही होते हैं हर साल, हर सर्दियों में भी होते, मगर यहाँ ये मंदिर है, हम मंदिर में आते हैं पूजा के लिए सवेरे। यहाँ इस मंदिर में कोई इंतज़ाम नहीं है। ये दईनाग इसको बोलते हैं। ये पता नहीं 100 साल पहले, 2000 पे कितना सालों से पहले, यह हमें भी पता नहीं है कितने सालों से पहले। ये ओरिजिनल है यहाँ, या न किसी ने बनाया न कुछ किया। ये तो ओरिजिनल नाग भी यहाँ निकला और मंदिर भी यहाँ, शिव पार्वती यहाँ निकलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िला बडगाम के अवाम की फरियाद कि इस मंदिर की तरफ फौरी तौर पर तवज्जो दी जाए। नाज़रीन, ज़िला बडगाम के बाद शुमाली कश्मीर के आखिरी ज़िला बांडीपोरा चलते हैं। ज़िला बांडीपोरा में रिवायती सरगर्मियों के साथ साथ अब की बार डिग्री कॉलेज में मौसीकी के स्टेट लेवल के मुकाबलों का इनेकाद कल से शुरू हुआ। एक रोज़ तक चले इस मुकाबलों में कमोबेश वादी की 17 टीमों ने हिस्सा लिया। मौसीकी को इस मौके पर जदीद तरीकों पर लाने के लिए हिकमत अमली वाज़ह कर दी गई। मौजूदा दौर में सूफियाना मौसीकी के अलावा अब की बार वेस्टर्न मौसीकी का भी गलबा अच्छे तरीके से छाया रहा। ज़िला बांडीपोरा इस मौके पर मौसीकी से ताल्लुक़ रखने वाले मदाहों की बड़ी तादाद ने प्रोग्राम की सराहना की और कहा कि इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद जारी रहना चाहिए था। संबल, श्रीनगर, बडगाम, कुपवाड़ा, साउथ कश्मीर के कई अहम कॉलेजों से यहाँ पर इस मौसीकी के प्रोग्राम में तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस बात की तरफ कोशिश कराई कि आने वाले दिनों में कल्चर एकेडमी और मुतल्लिका स्टेशन की तरफ से मौसीकी को मज़ीद निखारने और इसमें जान बख्शने के लिए अब उस्तादों को और अपनी सलाहियतों को मज़ीद बेहतर करने के लिए डिग्री कॉलेजों का भी रुख करना होगा। नाज़रीन, इस मौके पर हमारे नुमाइंदे शहजाद भट्ट से कई मदाहों ने बातचीत की।
एक इंटर कॉलेज सोलो कश्मीरी सिंगिंग कंपटीशन का इनका किया है। वो इस कंपटीशन में हमें साथ दे रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपोरा, हम उनके शुक्रगुजार हैं। They have collaborated with us, they have supported us। और इस कंपटीशन में हमने सिर्फ कश्मीरी लैंग्वेज को इसलिए रखा है क्योंकि आज के दौर में हम इंग्लिश को ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, उर्दू को ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, अरबिक को ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। या बच्चे हमारे आजकल डिप्लोमा कर रहे हैं फ्रेंच में, चाइनीज़ में, बाकी लैंग्वेज में, लेकिन अपनी मादरी ज़बान को भूल रहे हैं। और अगर यही हाल रहा तो हमारे बच्चे जो आज बिल्कुल कश्मीरी नहीं जानते हैं, नर्सरी के बच्चे, तो आइंदा अगले 50 साल में कश्मीरी ज़बान का वजूद खतरे में पड़ जाएगा।